رسول اعظم نبی رحمت درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، گٹھری والی بڑھیا کا واقعہ۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، ابتدا اسلام کا زمانہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں مکہ شریف کی سرزمین پر ایک بوڑھی عورت ہے جو وہ اپنی گٹھری میں اپنا سامان باندھتی ہے، اور باندھنے کے بعد میں سفر کرنے کا ارادہ کرتی ہے اس نیت سے کہ کہیں محمد کی بات میرے کان تک نہ پہنچ جائے اور میں اس کے دین کو قبول نہ کر لوں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ اس ارادے سے وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب صبح سے لے کر کے شام ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس عورت کا سامان اٹھا کر کے اس کی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جب شام کا ٹائم قریب ہونے والا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا، بوڑھی اماں کہاں جانا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں اپنا ایمان بچا کر کے، اپنے باپ دادا کا دین بچا کر کے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا وہ محمد نام کا ایک بندہ ہے جو اپنا نیا مذہب لے کر کے آیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے دینوں کو برا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، لوگ اپنے دینوں کو چھوڑ کے اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، صرف میں اپنے دین کو بچانے کی غرض سے سفر کر رہی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مزدور نہیں ہوں، لیکن تمہاری گٹھری اٹھا کر کے تمہاری منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ جب کوئی کام نہیں آیا تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی گٹھری اٹھاتے ہیں اور اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی منزل تک پہنچانے کے بعد آپ واپس تشریف لانا شروع کرتے ہیں تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا جانے سے پہلے اپنا نام تو بتا دو، جب میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہاں پر کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے، جب میں اپنی منزل پہ پہنچوں گی اور جب بھی مجھے یاد آئے گی تو میں یہ سوچ کر کے آپ کو تسلی دے لوں گی کہ اس مکہ میں جہاں پر کسی نے میری گٹھری نہیں اٹھائی، وہاں ایک ایسا بندہ تھا جس نے میری مدد کی ہے، تو میں اپنے محسن کا، اپنے احسان کا کیسے یاد رکھوں گی، اپنے محسن کے نام کو کیسے یاد رکھ سکوں گی، اس غرض سے آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنا نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس عورت نے کہا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تو مجھے محمد سے تھی، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس محمد کو چھوڑ کر، جس محمد کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو، وہ میں ہی ہوں، یعنی میرا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ اس محمد کا اخلاق تو بہت بڑھیا ہے، لوگ اس کے خلاف بیان کرتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، وہ شاعر ہے، وہ دیوانہ ہے، یہ تو بہت اچھے اخلاق کا ماہر ہے۔ کہا بیٹا تو مجھے اپنے اسلام میں داخل کر لے، اپنے مذہب میں داخل کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ بوڑھی عورت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس واقعے کو خطیب اور مقررین اپنی خطابتوں میں، اپنی تقریروں میں بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، بہت لمبی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بڑی لفاظیت دکھاتے ہیں، لسانیت دکھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس میں نمک مرچ لگا کر کے خوب طول دے دیتے ہیں۔ ایسا اہل سنت و جماعت کے نزد کے علماء بھی بہت سے بیان کرتے ہیں، اور دیوبندی لوگ بھی اس چیز کو بہت بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے کی تحقیق کریں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 4 مقرروں کے بیان پیش کرتا ہوں جو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور 2 دیوبندی لوگ ہیں جو دیوبندیوں کے بڑے خطیب ہیں، بڑے مقرر ہیں۔ لہٰذا چلیے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہل سنت کے خطیب حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی پاکستانی کے بیان کو رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، وہ گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے، وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے کھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتی جا رہی ہے۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے، میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دینی اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان بھی پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔
सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहरी मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पर मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया। अहले सुन्नत के दूसरे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी मद्दजिल्लाहुल आली इस वाक़ये को इस तरीके से बयान करते हैं, खूब लफ़ाज़ियत और लसानियत के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बुढ़िया अपने घर का सारा सामान बांध के मक्के के बाहर रास्ते में आ गई। मक्के वालों ने जाकर पूछा कैसे बैठी है? बोले मक्का छोड़ के जा रही हूँ। मैंने सुना 360 खुदाओं को झूठा कहता और ये कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, सैकड़ों को अपने हाथ से मैंने बना दिए, मैं उन्हें झूठा कैसे कह दूं? बुढ़िया ने जब ये बात बोली तो मक्के वाले खामोश। कहा तो फिर जा क्यों रही है? अपने घर में बैठ। कहा नहीं। कहा क्यों? बोले मैंने सुना जो उसके बात सुनता वो उसी का होता था, जो उसका चेहरा देखता वो उसी का होता था, जो उसके घर के आगे से गुजरता वो उसी का होता था। बोले फिर तू क्या करेगा? कहा मैं तो मक्के छोड़ के जा रही हूँ, ना रहूंगी ना चेहरा देखूंगी, बात खत्म। सुबह से शाम होने तैयार, कोई ऐसा ना मिला जो इसका सामान उठा के इसकी मंजिल तक ले जाए। शाम के वक्त कोई और नहीं तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही आए नबी ने बुढ़िया से आके कह दिया कैसे बैठी हो ज़ईफा? का इंतजार है किसी मजदूर का? कहां जा रही है? कहा मक्का छोड़ के जा रही है। कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं है अब्दुल मुत्तलिब का पोता जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं को झूठा कहता और ये कहता कि अल्लाह एक ही है और सारे माबूद हैं गलत और मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे नबी ने फरमाया फिर तुम क्या चाहती हो? बोले मैं तो मक्का छोड़ के जा रही हूं इसलिए कि बड़ा जादूगर है वो। जो उसकी बात सुनता वो उसी का हो जाता, जो उसका चेहरा देखता वो उसी का हो जाता, जो उसके घर के आगे से गुजरता वो उसी का हो जाता। मैं तो जा रही हूं मक्का छोड़ के। क्या जवाब दिया है मेरे नबी ने? फरमाया तुम्हें जाना कहां है? कहा अपनी मंजिल पे। कहा फिर इंतजार किसका? कहा मजदूर का। कोई मिल ही नहीं रहा जो मेरी कश्ती उठा के सर पर रख के मुझे घर तक पहुंचा जाए। मेरे नबी फरमाते हैं मैं मजदूर तो नहीं हूं मगर इस काम को अंजाम दे सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाई गठरी नबी ने अपने सर पर रख ली। मालूम है किस सर पे? जिस पे अल्लाह ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो कौन सा सर है ये? सारी दुनिया के सर मिलके जिस सर का मुकाबला नहीं कर सकते उस सर पे मेरे सरकार ने उस काफिरा की गठरी को रखा और रखने के बाद मुस्तफा चल दिए। जब बुढ़िया की मंजिल आई तो बुढ़िया ने कहा गठरी रख दो, मेरी मंजिल आ चुकी। नबी ने सामान उतारा अपनी जगह पर रख दिया और वापस चले। बुढ़िया बोली रुको। कहा क्यों? कहा मजदूरी तो ले लो। नबी ने कहा मैंने पहले कहा था कि मैं मजदूर नहीं हूँ, मजदूर लेता है मजदूरी, मैं मजदूरी नहीं लूंगा। कहा मतलब? कहा खुदा ने तुझ जैसी ज़ईफाओं की मदद करने मुझे जमीन पे उतारा है। बुढ़िया बोली मुझे एक बात बताइए आप। कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरा रास्ता तुमने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, अपना चेहरा नहीं दिखाया, कम से कम मुझे चेहरे से नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दो ताकि जिंदगी में कभी मिले तो पहचानूं ये वो मुहसिन है कि मेरे बेटा ने सामान नहीं उठाया, भाई ने नहीं उठाया, पड़ोसी ने नहीं उठाया, रिश्तेदार ने नहीं उठाया, मगर तुझ जैसे खैर बच्चे ने मेरी गठरी उठा के मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। जरा नाम बता, तेरा नाम क्या है ताकि जिंदगी में तुझे देख के सुकून हासिल करूं। अपना चेहरा दिखा कि तू है कौन ताकि जिंदगी में मिले तो तेरा शुक्रिया अदा करूं। मुस्तफा नकाब के अंदर चेहरा है, मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मैं नाम बताऊंगा मगर तुझे तकलीफ होगी, मैं चेहरा दिखाऊंगा मगर तुझे तकलीफ होगी। बुढ़िया बोली कैसी बात कर रहे हो? जिसने मेरा सामान उठा के इतनी दूर तक सर पर रख के मेरी मंजिल तक पहुंचाया, क्या उसका चेहरा देखकर मुझे तकलीफ होगी? नबी फरमाते हाँ। कहा चेहरा दिखा, तकलीफ नहीं मुझे खुशी होगी। नाम बता, मुझे तकलीफ नहीं खुशी होगी। मुस्तफा ने दस्ते नबूवत उठाया उस चेहरे से नकाब हटाने के लिए जिस चेहरे को अपने साथ हजरत जिब्रील मेराज की रात लेकर चले थे। तो रास्ते में नबी को रोककर जन्नत की तरफ बढ़े तो रब ने फरमाया था जिब्रील कहां जा रहे हो? तो जिब्रील अर्ज करते हैं मौला तेरा हबीब है मेरे साथ में इसलिए जन्नत जा रहा हूं ताकि एक इंजील उठा लूं, रास्ते में जरूरत पड़े तो उसे रोशन करके मेरे हबीब का रास्ता साफ कर सकूं। रब ने फरमाया जिब्रील वापस चले जाओ, उस हसीब के सामने किसी इंजील की जरूरत नहीं है। जहां अंधेरा महसूस हो तो उस हबीब के चेहरे पर जिसको तुम साथ लेके आ रहे हो मेरी तजल्ली के 70,000 तोहफे पड़े हैं। एक पन्ना पलट देना जमीन से आसमान तक उजाला होगा। मेरे नबी की शान देखें, मेरे नबी की कीमत देखें, मेरे नबी का तकद्दुस देखें। आज उस चेहरे से नकाब हटा ले। मेरे नबी ने अपने हाथ को बढ़ाया और चेहरे से नबी ने नकाब को पलट दिया। जैसे ही नकाब पलटी गई दुनिया की नजर उस हसीन के चेहरे पर पड़ी जो हसीनों का हसीन है, जो जमीनों का जमीन है, जो बेकसों का कस है, जो बेबसों का बस है, जो टूटे दिलों का सहारा है, जो कायनात का यारो मददगार बनकर आया है। मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखकर दुनिया का दिल पलट गया, कदमों में गिर गई। मुस्तफा जाने रहमत के कदम पकड़ के बोली देर मत कर, कलमा पढ़ा ले, मुसलमान बना ले। मुस्तफा बोले मेरी वजह से मक्का छोड़ा और यहाँ कलमा पढ़ा लूं। यहाँ देर मत कर, सिर्फ इसलिए कलमा पढ़ा कि जब तेरा अखलाक कितना अच्छा है तो तेरा इस्लाम कितना अच्छा होगा। देवबंदी मकतबा
मजमुआ फ़िक्र के ख़तीब मुकर्रिर बहुत मशहूर मोहम्मद अहमद अली साहब वो इस वाक़ये को किस तरीके से बयान करते हैं, कैसी लफ़ाजियत और लसानियत इसमें पेश करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अरे मेरे दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर, हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भराए, हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसीलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा, वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा, और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, वो तो बुरी औरत थी, अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे तो बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારું કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना, बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले, उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आज, क्या क्या काम है, कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बुरी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत। हाँ बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आए, कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात, कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते हैं, कितने लोग तो कहते हैं वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते हैं वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो, कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है, वो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रखे आते, जा लेके आते, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, बाकी मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो की कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते हैं, नजूमी कहते हैं, मजनून कहते हैं, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊँ। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा, बताओ पूछा हमारे नबी ने, नहीं अम्मा मैंने तुम्हें मां कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी मां बन गई मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा तो मेरे नाम की क्या जरूरत है। तो अम्मा कहती ना तूने मुझे मां बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद, जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद नहीं हो। लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ, मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी
मजनूनी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई जो कलमे की तू दावत देता है, हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है और क्या जुमला बोलती है मालूम? वो माँ बोलती है, अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तो वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। कारी हनीफ मुल्तानी जिनका इंतकाल हो चुका है, ये इस वाक़े को किस तरीके से नमक मिर्च लगा करके लफ्ज़ियत और असानियत का इजहार करते हुए बयान करते हैं, सिमात फरमाएं। वो एक माई बूढ़ी सर पे गठरी सामान की है, हाथ में पानी पीने के लिए एक लुटिया है, गडवी है, बाहर निकली और वो सामान उठाने की हिम्मत नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी मक्के में जादू करा गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने जिहाद में चली हूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठरी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चलती है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहां जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी और मेरे बेटा जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी कचड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती गई हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं तेरे सामने मौजूद हूं। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी तो कहने लगी अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कलमा पुकार उठी। इन चारों खतीबों ने अपनी खिताबत में बड़ी लफ्ज़ियत और लसानियत का इजहार करते हुए, बड़ा तूल देते हुए, बड़ा नमक मिर्च लगाते हुए इस वाक़ये को बयान किया है। अब आइए तहकीक में चलते हैं, ये वाक़या सही है या ये वाक़या गलत है। तो जब हमने तहकीक शुरू की तो रिज़ल्ट यही निकला कि ये वाक़या मनगढ़ंत है, लोगों का अपना बनाया हुआ है, हदीस की किताबों में इसका कहीं सबूत नहीं है और इसको बयान करना ये उन्होंने अपनी तरफ से सुनाया या बाज़ किताबों में इसको ज़िक्र किया है तो वो किसी मुस्तनद और मोतमद किताब के हवाले से बयान नहीं किया है, लिहाजा ये वाक़या मनगढ़ंत मौजू और घर का बनाया हुआ है। आइए हवाला मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुफ्ती ज़िया अहमद क़ादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली अपनी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया की हकीकत सफ़ा नंबर 34 पर फरमाते हैं, ये वाक़या भी मशहूर है कि एक मरतबा एक यहूदी औरत सर पे गठरी उठाकर मक्का शरीफ से जा रही थी। आपने देखा तो उससे गठरी लेकर के ख़ुद अपने सर पर रख ली। जब उसे मंजिल पर पहुंचा दिया तो उस बुढ़िया ने आपको नसीहत की कि मक्का में एक शख्स जो लोगों के आबाई दीन से फेर कर अपने नए दीन की दावत देता है और उसका नाम मोहम्मद है, तुम उससे बचकर रहना। आपने फरमाया वो मैं ही हूँ। वो बुढ़िया आपके हुस्न अखलाक देख करके ईमान ले आई। इस वाक़े की तहकीक में हज़रत फरमाते हैं ये वाक़या मनगढ़ंत और मौजू है, कुतुब अहादीस में कहीं इसका नामो निशान नहीं है, यानी अहादीस करीमा की जितनी भी किताबें हैं कहीं भी ये वाक़या नहीं है। और आगे फरमाते हैं खुतबा ने अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। मदीना मुनव्वरा के एक आलिम से इस मौजू को इसको मौजू करार दिया है और उसके अलावा इसके मौजू होने की वजह एक ये भी है कि इसमें यह कहा गया है कि वो औरत यहूदी थी और ये वाक़या मक्का मुकर्रमा का है, हालांकि मक्का मुकर्रमा में यहूदी थे ही नहीं, तो उनकी बूढ़ी औरत कैसे मक्का छोड़कर जा रही थी। मतलब यह है कि मक्का शरीफ में जब यहूदी थे ही नहीं तो उनकी बूढ़ी औरत कहाँ से मक्का शरीफ में आ गई, फिर मक्का शरीफ छोड़ करके जा रही थी, इसलिए ये वाक़या मौजू है। और दूसरी पहली वजह ये थी इसमें
کہ مکہ کے کتب احادیث میں اس واقعے کا کہیں سے کہیں تک ذکر نہیں ہے، تو جب کتب احادیث میں ذکر نہیں ہے تو اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کو خطبہ نے اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کر کے نمک مرچ لگا کر کے بیان کر دیا، لہٰذا تحقیق یہ ہوئی کہ یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، گھر کا بنایا ہوا ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ پھر بھی اگر کوئی بیان کرے تو آپ اس سے اس کی تحقیق مانگیں، اس کا حوالہ مانگیں، اس سے کہیے کہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے تو کسی معتبر کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تحقیق پیش کر دی، اس سے بہترین تحقیق آپ کی نظر میں ہو آپ کریں تو کر سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھے بتائیں میری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ثابت ہوا۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔